Hello, sir. Good evening. Good evening, Preet. Let's wait for 5 minutes, then we will start. ओके सर. सर एक्चुअली सर टुडे यू सर आपने आज लिंक नहीं भेजी थी ना, तो मैंने फिर कल के लिंक से ही किया सर, हो गया था. कल के लिए से हो गया? So from where you joined? You have taken the link from. Sir, yesterday's link you sent for that Urban Pro link, the same link, sir. I clicked on the same link, so there, so it got connected like to this class. Oh, nice. It came there that join today's class 6:30. Like I just clicked launch class and Okay, Preet. चार या चौदह. Sorry. Yeah, Preet. You were saying something? No, sir. Okay. So I was saying that कल की लिंक से हो गया था सर, मतलब ऐसे join. अच्छा, okay. Because everyone, for everyone, I have to send the link on the email. That may be the reason I have sent to you on your mail out. That may be one of the reasons that you Yes, sir, will. because I join by my phone now every day. Okay. So now only three papers are remaining. Saturday eco, and then next Friday Saturday. Last. Okay, Deep. Sir, wanted to ask you, what do you think that will they sir postpone boards
because the corona second wave is coming now, so that's why. So the second wave is coming in. Okay. Yes, sir. So what do you think that they will postpone the boats or not? Reet, I'll say we should not assume anything as of now because this whole year has been unexpected for all of us. Yes, sir. The things are happening, so like we don't know anything. Every time something or the other. No one knows anything. It is unpredictable. Till the time we get any surety on that, we will keep on assuming the previous, that is Feb. But there are chances that it may get delayed. There are chances. Yes, sir. Like they have not confirmed sir, as of now because the state board and Gujarat board they told that they are postponing it, but CBSE and ICSE they said that it's too early now to predict. The reports have come. Okay, yeah. So, sir, after our eco paper, then eco classes will resume after the exams only Yes. because 5th December is the last exam. So 5th. Yes, Rohit. Okay, sir. We will continue after your exam. Once your exams gets over. Who's this 10 minutes late? So I think it's Krishna. Krishna has joined now. Okay. So, very Reet and I am very thankful to you to join the class. So Ayush will not be joining today because today only is eco paper got. Yeah, he will not be joining. He will be joining for the accountancy. Okay, sir. Okay, so today we are going to do with the cost and revenue chapter. Reet, you can open that page. Yes, sir. Chapter is cost that we will be doing today. Let's see if we have time. We will cover the revenue also. So it's chapter number 8, no? Cost. Yes, I'm just. Yes, sir. I opened it. Okay, Krishna has sent me something.
Krishna, are you there? So you wrote it now, the explicit cost. We have to write it now. Acha, it's before. I thought you wrote it. All right, let's leave. हेलो हाँ, आप कुछ बोले मिस्टर कृष्णा, हमें पता कैसे चलेगा आपने ज्वाइन किया है? नहीं मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा था सर इतने देर से मैंने हॉटस्पॉट चालू कर किया तो वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा था अभी सर मैंने मम्मी के मोबाइल से कनेक्ट Okay, fine. So let's cover up these two topics which are very important. Yesterday we discussed about the money chapter, and Ayush had got those questions of the Yes, I contingent. checked this paper, so that contingent functions. Uh, Read. Okay, yeah. Krishna, I will send you Ayush's eco paper. He would have shared it with Krishna also, I think so. Moving to the next. All right, so you should know the money cost. We have done a brief discussion on these topics. That is what is money cost, what is accounting cost, explicit cost. We have done that. Do you remember the example of the Infosys that I had taken? So which example? Infosys. यहाँ पे लिखा है ना मिस्टर आयुष ने BNY Infosys. याद आ Infosys. रहा है कृष्ण? सर एक मिनट हाँ सर सर जिसमें सर मतलब अपने खुद के रिसोर्सेस सर फर्म के लिए यूज करना अपने खुद के रिसोर्सेस फर्म के लिए यूज करना. ओके. सर जैसे उनके पास अगर सपोज सर मैं दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ सपोज खुद के पास कुछ हॉल है कुछ है तो वही कॉन्फ्रेंस हॉल. वही तो डिस्कस किया था हमने. हाँ सर वही था शायद वही मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था. मतलब जब खुद के लिए यूज करते हैं सर खुद का कुछ फंक्शन करने के लिए तो वो उसमें आता है सर इम्प्लिसिट में आता Okay. Money cost refers to the money expenses which a firm has to incur in purchasing or hiring the factor services. उसे explicit cost कहते हैं. Explicit cost मतलब BNY का एग्जाम्पल, क्योंकि they only have the rented area. They have taken all the halls, all the offices on rent. है. यस सर. That is the explicit. And you can call it as money cost or accounting cost also. A money payment made by firm to the owners of the factor of production in purchasing and hiring the factor services. That is explicit cost. अभी हम economic cost की बात करेंगे. Economic cost have three different component you can say. That is money cost, explicit cost. Money cost and the explicit cost are the same thing. ठीक है? Implicit cost और normal profit. एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है. अभी इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात कर लेते हैं. इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट owned by the firm and used by it in their own production unit. You cannot get the exact value. Exact value नहीं मिल पाएगी इसकी. The reason is you are using your own factor of production. तो आपने कितना पे किया you will not get क्योंकि you are not paying anything. It is your own factor that you are using. So because when we use like conference hall or something, so we need to pay, like light bill and also some things, arrangements, है ना. So we'll just keep. So मतलब ये accounts के book में नहीं लिया जाएगा ना. ये एक है book of accounts में. Okay. Yes. नहीं लेंगे ना सर implicit को. Accounts के book में ये नहीं लिया जाता है. मतलब खुद के लिए रहता है सर ये खुद So के the लिए reason is you are not paying anything. Okay. It is the estimated cost of the self-owned, self-employed resources besides purchasing or hiring resources from others.
A producer may also use his own factory services in the process of production. कृष्णा कुछ डाउट है इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट में? इन्फोसिस का एग्जांपल लिया था ना, इन्फोसिस के पास अपना एक हॉल है, अपना एक थिएटर है, तो वो अपना ही थिएटर यूज करते हैं अपना है तो फिर खुद के इसमें यूज कर। और खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट निकालना भी इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एक्यूरेट कॉस्ट, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट. कृष्ण, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? He left. Okay. Okay. What are the other name of this implicit cost? Uh, Imputed cost. yes, sir, imputed or estimated. Krishna, do you have any question in this implicit cost? नो सर. Okay. Implicit cost को imputed cost भी बोल सकते हैं, ठीक है? यस सर. ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, so you should be ready for that. So they will ask that define imputed cost or something. So both the names we should. Yeah. Next, normal profit की बात करेंगे अभी. Normal profit is defined as the minimum payment which a producer must get in order to induce him to undertake the risk involved in the production. समझ में आया कृष्णा? यस सर. मतलब सर कम से कम पेमेंट जो सर प्रोड्यूसर के पास होना चाहिए सर, मतलब कोई भी सर प्रोडक्शन अंडरटेक करने के पहले, है ना सर? नहीं नहीं, दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट. अच्छा, अगर 10 रुपए की चीज है हाँ. और वो 90 रुपीज में सेल हो रही है, हम्म. अगर 100 रुपीज की चीज, आयुष वेट अ मिनट, वेट, नो नो, डू नॉट म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, सो कृष्णा, अगर 100 रुपीज की चीज है, वो 90 में सेल हो रही है, डू यू थिंक देयर विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट? नहीं करेगा ना. अगर इनिशियली लॉस हो रहा है तो आगे जाके तो और भी लॉस हो सकता है, तो थोड़े टाइम तक करेगा फिर छोड़ देगा. चलो ठीक है. अगर उसका कॉस्ट है 100 और वो कमोडिटी सेल हो रही है 105 में, 5 रुपए उसका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्या कंटिन्यू करेगा? बिल्कुल करेगा. करेगा, बिल्कुल करेगा. क्योंकि उसे आगे जाके लगेगा कि अभी ठीक है, मैं थोड़ा कम कमा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जैसे सेल्स इंक्रीज होंगे, शायद मेरा प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाए. So it will be a motivation to him to undertake the risk involved in production. अगर 100 की चीज 100 में सेल हो रही है, तो बताओ वो कंटिन्यू करेगा? करेगा सर. नहीं करेगा. वो क्यों करेगा? उसे प्रॉफिट चाहिए ना. अच्छा, मतलब प्रॉफिट ही चाहिए. अच्छा. बिना प्रॉफिट के कौन काम करेगा? 6 महीने काम, थोड़े पीरियड के लिए रुक सकता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन जहां पे वो उतना लग रहा है और उतना ही वापस आ रहा है, तो कौन प्रोड्यूस करना चाहेगा? थोड़ा तो प्रॉफिट चाहिए ना कृष्णा. स्टार्टिंग में भी थोड़ा प्रॉफिट तो चाहिए ना. यस सर. सब Like- मतलब ऐसा होना नहीं. साहब बोल लो. अब बोल. नहीं नहीं रीता, आप बोलिए. सर नहीं, मैं बोल रहा था कि आप बोलिए. मतलब सपोज 100 की चीज है, तो 102 में भी, मतलब 102 में भी बेची तो चलेगा सर उसको, क्योंकि कम से कम उसको 2 रुपए तो मिल ही रहे हैं पैसे. Right. So the producer will be the one who is going to decide that how much is the minimum profit for him or the normal profit for him. अगर उसे लग रहा है कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट 5 रुपए है और अगर 2 रुपए आ रहा है, तो वो कंटिन्यू करेगा कृष्णा? नहीं करेगा. अगर उसने सोचा है मेरा मिनिमम प्रॉफिट 5 रुपए है और उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा. वो कहेगा मुझे मिनिमम तो 5 रुपए चाहिए ही अभी. अगर 2 रुपए आ रहा है तो फिर मैं आई विल लीव एंड आई विल फाइंड समथिंग एल्स. इतने कम प्रॉफिट पे मैं काम नहीं करूंगा. सो मिनिमम प्रॉफिट एटलीस्ट मिलना चाहिए, सो दैट द प्रोड्यूसर can induce himself to undertake the risk of the risk involved in the production. प्रोडक्शन करके वो रिस्क ही ले रहा है ना.
That is for risk taking he should be rewarded at least by the minimum profit जो वो जो expect कर रहा है, right? Krishna, Yes. if the producer is producing something, there is a risk that he is taking, and it has to be rewarded by the profit. Okay. So he should get the minimum profit, or if he gets more also, say it's well and good only. Like minimum, so he should get. Normal profit is similar to the firm's implicit cost. Okay, you can ignore that. Moving to the next. Now we can define economic cost as the sum total of both explicit and implicit, including the normal profit. इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट तीनों चीजें आती हैं, ठीक है? Yes, sir. Implicit, implicit और including normal profit. But economic cost क्या होता है? Economic cost you can say the total cost, जिसमें implicit, explicit और थोड़ा बहुत profit भी रहता है. Yes, sir. Sir, but cost either sir implicit होगा नहीं तो explicit होगा ना sir, दोनों एक कैसे क्या हो सकता है? नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ कुछ कॉस्ट हो सकता है इम्प्लिसिट, कुछ कॉस्ट हो सकता है एक्सप्लिसिट, राइट? अगर कोई प्रोड्यूसर है उसके लिए कुछ इम्प्लिसिट भी हो सकता है, कुछ एक्सप्लिसिट भी हो सकता है. हाँ, जैसे इन्फोसिस के लिए सैलरी पे करना एक्सप्लिसिट है, लेकिन अपना खुद का थ्रेटर यूज करना इम्प्लिसिट है. तो दोनों चीजें को ऐड करेंगे और जो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए उसे भी ऐड करेंगे, देन दे विल गेट द इकोनॉमिक कॉस्ट. ठीक है, मतलब अपनी चीज यूज कर रहे हो, लेकिन वो चीज अपने फैक्टर को परचेज करने के लिए भी तो आपने पहले कभी पैसे दिए होंगे ना. थिएटर बनाने के लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा ना, एक्सपेंडिचर लगा होगा, तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, तो वापस रिपीट करो ना, क्या बोला आपने जो पहले लिया है परचेस? अभी थिएटर की बात हो रही है इन्फोसिस की. थिएटर कभी बनाया तो होगा ना पहले, हाँ बना. एक्सपेंडिचर तो लगा होगा. तो डोंट यू थिंक इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कंसिडर करना चाहिए? हाँ सर, करना चाहिए. मतलब कृष्णा, भले वो अभी जब यूज कर रहा है सर थिएटर, वो तो वो खुद के लिए कर रहा है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद का ही है ऐसे. बट खुद के लिए तो करना पड़ेगा ना उसको, खुद को रेफर करने के कि कितना, खुद को अगर मैं बाहर थिएटर करता तो कितना लगता पैसा वैसे. ओके कृष्णा, मनी कॉस्ट हाँ, लेकिन अकाउंटिंग कॉस्ट में इम्प्लिसिट नहीं आता. अकाउंट में कभी हमने लिखा हुआ देखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर यूजिंग ओवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? नहीं. रेंट, सैलरी, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें जो एक्सप्लिसिट होती हैं वही आती हैं अकाउंटिंग में. ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग या मनी कॉस्ट पूछा तो सिर्फ आप एक्सप्लिसिट की बात करेंगे. इकोनॉमिक की कॉस्ट की बात करा तो if they have asked you economic cost, then you will be using explicit as well as implicit, including the normal profit. And you already know the explicit cost what it is, and you already know the implicit cost what it is. Okay. Ayush, you can, have you started the practice set? कब start करोगे? और उसको अनम्यूट करो बोल रहा है. सर ये अपने लॉक किया क्या वो? नहीं सर फोन से ज्वाइन किया था मैंने अभी, इसलिए. नहीं, सर मैं आप वही वो मत पूछ रहा था. बताइए, मुझे ये बताइए आप प्रैक्टिस सेट कब शुरू करने वाले हैं? सर मैं वही पूछ रहा था सर, फिर अभी मैं मतलब ज्वाइन करना ये था क्या सर? मतलब मैं अभी नहीं तो कर रहा था, वो प्रैक्टिस सेट ही करना था. ओके फाइन, यू कैन कंटिन्यू विद दैट. तो सर मैं लीव कर दूं? या यू कैन. सर और ये पेपर मेरा आज ही हो गया. ये पेपर आज ही हो गया मतलब? इको. हाँ. खुश हो रहा है आयुष. आयुष अभी टेंशन मत ले. सर अभी टेंशन हो रहा है, पेपर खत्म होने का सर. अभी टेंशन, एग्जाम देने के बाद. गुड, यही होना चाहिए. सर फिर अभी नेक्स्ट क्लास कब है सर?
I'll inform you, आयुष, कल तो नहीं होगी, कल इकोनॉमिक्स ही होगी, हम रिवीजन ही Okay. कंटिन्यू रखेंगे। अभी सर 20 तो मेरे लिए सर आज के जैसे और एक फिर कल भी प्रैक्टिस सेट भेज सकते हैं। ठीक है, आप छुट्टी लीजिए, हम 28 को मिलेंगे। सर छुट्टी नको सर, वैसे भी सर अकाउंट्स में सर रिवाइज जैसे करने के लिए भी कुछ नहीं है सर, उसमें सम करने पड़ते हैं ना मैथ्स जैसे, इसीलिए। ठीक है, हम बात कर लेंगे आफ्टर द क्लास। ओके, अच्छा ओके, गुड बाय आयुष। बाय सर, थैंक यू, बाय You're कृष्णा, welcome. बाय रीत। बाय बाय। आयुष। ओके, अभी हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। About the opportunity cost of producing any goods is the next best alternative good that is being given up to produce this good. यस अभी मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। अभी मैं ट्यूशंस कर सकता हूँ, या फिर मैं मिस्टर कृष्णा का एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर कृष्णा के पास दो ऑप्शन थे, एक तो क्लास करें नहीं तो बाहर घूमने जाएं, वॉकिंग रनिंग करने के लिए। तो उन्होंने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया? ट्यूशन अटेंड करने का। और उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होता? ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं ना, अपने दोस्तों सर के मतलब वो साथ नेक्स्ट बेस्ट होता है ना, या तो ये या तो वो, ऐसे नेक्स्ट तो ये बेस्ट, या तो वो। सेकंड बेस्ट। आप हर चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट थिंग तो यू हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, ट्यूशंस, गोइंग फॉर रनिंग, गोइंग विद फ्रेंड्स, गोइंग आउट फॉर डिनर, यू हैव सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स। तो आपने क्या किया? बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज किया और मतलब जो उसकी सा नेक्स्ट। हमारे लिए बेस्ट लगा खुद के लिए। ऐसा मत करो, let me सॉरी। complete the explanation part, then we will discuss in detail. यस सर। हाँ, तो कृष्णा selected the best alternative, and the next best alternative, the cost of next best alternative, that is called as opportunity cost. मतलब ट्यूशन अटेंड करने के लिए आपने जो चीज लीव करी, जो चीज छोड़ी, उसका कॉस्ट। ठीक है कृष्णा रीत, समझ में आया? हाँ सर सर समझ। सर समझो सर, हमने सर फोन बनाने के लिए सर बॉटल बनाना छोड़ दिया, तो सर बॉटल का कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोन बनाने के लिए आपने बोतल का प्रोडक्शन छोड़ दिया, राइट? सो बोतल बनाने में आपका कितना कॉस्ट लगता? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस सर। करेक्ट। यस रीत, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, आई गॉट इट। Okay. Okay, so they have given the explanation of that below this. Here, the cost of producing a particular quantity of a commodity is measured in terms of the quantity of some other commodity that could have been obtained instead. ठीक है, उसका cost। और ये opportunity cost निकालते क्यों हैं? Because of the scarcity of resources. Resources are scarce, they are limited and have alternative uses. Okay, tell me the answer, Krishna. Do you think opportunity cost gets recorded? नहीं सर। नहीं होता। Okay, तो सर हम यही नहीं करते प्रोड्यूस, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल सही। हाँ लेकिन हम क्यों फाइंड करते हैं? सर, क्योंकि सर हमें सर देखने के लिए कि सर कौन सा सर ये है सूटेबल हमको, वो या फिर ये, मतलब What सर is? Okay, मतलब सर हम जब एक गुड बनाते हैं सर, तो हम सर उसका पूरा मतलब पूरा सर उसको सर पूरा सर मैथ्स उसका सर मतलब पूरी कैलकुलेशन करके सर हम फाइंड आउट करेंगे ना सर कि ये हमारे बजट में बैठता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए या फिर नहीं, वैसे सर कंपेयर करने के लिए। okay. Yes, Reet. What do you want to say, Reet? हाँ सर, मतलब हम इसलिए करते हैं ना शायद कि
मतलब हमको पता चले ना कि सपोज एक गुड हम गिव अप कर रहे तो हमने अगर वो किया रहता तो क्या हुआ होता, मतलब हम सोच सकते हैं उस बारे में शायद। राइट, करेक्ट रीत। हमने ये चीज बनाने के लिए क्या चीज सेक्रीफाइस की। हम्म। You should be knowing that. That is why the opportunity cost is used. Opportunity cost in money terms is the sum total of explicit, implicit cost or the economic cost. Opportunity cost is different from the accounting cost since the accounting cost is taken as a sense of explicit only. ठीक है? Opportunity cost in money terms is the sum total of explicit and implicit cost. ठीक है? यस सर। Okay, moving to the next. Real cost. रियल कॉस्ट। सर applications of opportunity cost are not there, no? They are not there. Yes sir. Real cost refers to the effort and the sacrifices made by the owners of factory of production used in the production of a commodity. Labor कितना work कर रहे हैं, with the mental effort that they are doing, mental and physical effort that they are doing. Owners of capital and the land have to make sacrifice by not using their own resources themselves. वो अपने रिसोर्सेज खुद यूज नहीं कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि जाइए आप रेंट दीजिए और हमारी प्रॉपर्टी यूज करिए। आप बैंक आपको अपने पैसे दे रही है कि आप पैसे यूज कीजिए और बस हमें इंटरेस्ट दीजिएगा। Yes sir. So all the sacrifices that the owner of production make, that is called as real cost. सर बट एक चीज पूछनी थी, सर ये लोग खुद नहीं कर रहे यूज, ठीक है सर, मतलब सैक्रिफाइस, बट उनको पैसा भी तो मिल रहा है ना, हम मनी भी तो दे रहे हैं। तो सर मतलब उनको प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना, एक तरफ से अगर देखे, मतलब ऐसे। हाँ हो रहा है। तो सर फिर वो सैक्रिफाइस कैसे हुआ सर, वो कुछ ऐसे। लेकिन कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तभी तो उनको पैसे मिल रहे हैं ना। मैं हाँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट या फिर जो रिटर्न होगा वो तो देना ही पड़ेगा वो। हम्म। लेकिन कुछ सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं ना वो। इसका मतलब बस ये कि वो खुद नहीं कर रहे खुद की चीज यूज, तो वो वे में ना कि सैक्रिफाइस हो रहा है वैसे। सेक्रीफाइस का ही तो पैसा ले रहे हैं आपसे वो लोग। वो तो हम्म। ठीक है, लेकिन सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। हाँ सर, वो तो है कहीं ना कहीं। All right. So in return, they are getting they are getting the return for their sacrifices. But you should not forget that they are taking efforts and sacrifices. That they are not using their own. For let's take an example. यहाँ पे कृष्णा हम एक example लेते हैं employee का. Employee is providing the service to the company. Don't you think employees wait, there is some disturbance coming up. So from my side, Yeah, I think it was like speaker or something. Okay. Yeah, like whenever I speak now, I also get my own voice back. Now it is fine. okay sir. Yeah. Employee is providing the service to the company. So don't you think employee is sacrificing or taking the efforts? Efforts तो दे रहा है ना वो, sacrifices भी कर रहा है वो अलग बात है, उसको सैलरी मिलेगी, वो तो ठीक है, वो आई डू एग्री विद दैट। But he is the whatever the sacrifices that the factor of production is making, that is called as real cost. Yes, But sir. it doesn't have the practical use, Krishna. That is the thing that you have to understand. रियल Yes. कॉस्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते हैं।
This is just a definition that they have given. Okay. Yes, sir. So no practical significance. Private cost, social cost. एक कम्युनिटी बनाने के लिए आप कितना एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, that is called as private cost. Let's discuss about social cost. Social cost क्या होता है? आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता that will be having the effect on the society, Yes, sir. Mainly environment. environment. सर हमने If you are किया producing, गोवा के यहाँ पर सर सर कोई तो सर अरब कंपनी कौन से तो भी सर कुछ तो ऑयल का कुछ तो करने वाला है सर, और सर उधर के लोगों ने अपोज किया सर, क्योंकि नहीं वो ऑयल नहीं है, कोल है, कोल. कोल हाँ हाँ और मीडिया ने भी ये बात निकाली नहीं सर बाहर, ये बाद में पता चला सब चीजें. Okay, so whatever you produce, the society has to bear the cost. जो आजकल they are not adding into that price. Not adding to the price, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कॉस्ट लगे 100 और सोसाइटी में आपको लग रहा है कि उस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उस चीज़ को बनाने में. Okay, let's take the example of tobacco. If the tobacco is of 100 rupees that is being produced, लेकिन उसके वजह से लोगों को माउथ कैंसर ये सब चीज़ें को झेलनी पड़ती है, और ऑल ऑफ दैट आर बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. तो डोंट यू थिंक उस पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली. तो उन्होंने लेट्स अज्यूम 50% का टैक्स लगा दिया, so it became 150. अच्छा इसके वजह से टैक्स ज्यादा होता है क्या? राइट. सो अल्कोहल, टबैको ये सब चीज़ों पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कि वो लोग सोशल कॉस्ट भी ऐड कर दें, क्योंकि आगे जाके हॉस्पिटल में डॉक्टरों को रखना पड़ेगा. मतलब ये पूरी चेन है. हाँ सर, ये दिमाग में आया नहीं. आप अल्कोहल कंज्यूम करें, आप गवर्नमेंट को टैक्स दें, उसी से आप अल्कोहल पीने के बाद क्राइम करें, वही टैक्स के पैसे से पुलिस को भी सैलरी जाएगी. दिस इज द होल चेन. सर मतलब अभी अगर हमने सर पेट्रोल की गाड़ी ली सर और उसमें से बहुत सारा धुआं निकल गया, तो सर वो इनडायरेक्टली सर गवर्नमेंट सर ही ये करेगा ना सर, गवर्नमेंट को ही सर पूरा एटमॉस्फेयर का देखना पड़ेगा सर कि पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर उसका क्या करेंगे, तो सर उसका टैक्स सर ले लेते ना सर वो मैं पेट्रोल. आपको बिल्कुल सही कृष्णा, सॉरी फॉर इंटररप्टिंग, बट यू वर करेक्ट. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. वॉल्क्सवैगन का, वॉल्क्सवैगन एंड यूएस. वॉल्क्सवैगन जर्मनी की है ना, हाँ सर जर्मनी ब्रांड. ओके, लेकिन वॉल्क्सवैगन ने क्या किया था, अपनी जो गाड़ियां थी उनके साइलेंसर में एक इक्विपमेंट लगा दिया था, जैसे कि वो जो भी सल्फर आता था साइलेंसर से वो सब डिटेक्ट नहीं हो पाता था मशीनों से. यस उन्होंने सर. कुछ ऐसा डिवाइस लगा दिया था साइलेंसर में कार्स के. तो जब यूएस के, आपको पता होगा कि वहाँ पे ये सब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि गाड़ी BS6 होनी, BS5 BS6 होनी चाहिए, ये सब चीज़ें. तो देयर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दे हैव टू फॉलो. तो आपको अगर यूएस में कुछ बाइक या ऑटोमोबाइल सेल करना है, यू हैव टू टेक द परमिशन. तो वॉल्क्सवैगन वालों ने क्या किया था, उसके साइलेंसर में एक इक्विपमेंट लगा दिया जैसे कि सल्फर कम डिटेक्ट होता था, ये डिटेक्ट ही नहीं होता था जो भी सल्फर हो रहा था. ये चीज okay, so Volkswagen became popular, famous, and like they were selling like many cars sold during the period of 10 to 15 to 20 years. बाद में जाके पता चला कि Volkswagen is using this device. जब ये चीज यूएस गवर्नमेंट को पता चली, then they took the decision कि आपकी इन कारों से कितना एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ा होगा. ये सल्फर, इतनी गाड़ियां हैं, लेट्स अज्यूम 50,000 कार्स आर देयर इन यूएस,
and all of them polluted the air by emitting sulfur. तो उसके वजह से environment में कितना इफेक्ट पड़ा, लोगों को कितने डिसीजेस होंगे, कितने सारे एनिमल्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, ग्लेशियर्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी और उन कैलकुलेशन के बेसिस पे उन पे फाइन लगाया गया। दैट वाज ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बहुत बड़ा एक फाइन देना पड़ा वॉल्क्सवैगन को इस एज अ सोशल कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। सर बट एक पूछना था आपसे, यस जैसे टोबैको सब चीजें मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती है सर उससे, तो ये लोग बंद क्यों नहीं कर देते सर पूरे तरीके से? और उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता ना। हाँ वो भी बात है ना, वही मेरे दिमाग में आया था कि वो भी होता है, तो सर यही मेजर रीजन इनकम, है। यू कैन से मेजर इनकम फॉर गवर्नमेंट। हम्म। Okay, moving to the next. Okay, social cost equals to private plus external. And what is external cost? Functional is social plus private, no? No, social is private. External cost is the cost incurred by the society. The cost incurred by The cost experienced by those who have to suffer because of the production of the community in terms of external cost. So it's same as social cost, I think. सोशल कॉस्ट में दोनों चीजें आती हैं, प्राइवेट जो ओनर ने इनकर किया है वो, और जो सोसाइटी ने बेयर किया है वो भी। और जो सोसाइटी ने बेयर किया उसको एक्सटर्नल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सोशल कॉस्ट में हमें रिमेंबर करना है, सोशल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट और एक्सटर्नल दोनों आते हैं, और एक्सटर्नल का मीनिंग ही मैंने अभी बताया था। ठीक है, refers to the cost that the society has to bear on account of the production of a commodity. This is the definition. After that you can just write this formula. Moving to the next, external cost क्या होता है वो, it is written over here. The cost that is not borne by the firm but is incurred by other member of the society or the entire society. Such costs are termed as external cost for the firm point of view and the social cost from the society point of view. ठीक है, जो मैंने अभी बताई थी ना वॉल्क्सवैगन वाली कहानी, वो मैंने सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोशल कॉस्ट हो गया, लेकिन एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सटर्नल कॉस्ट हो गया। इंटरनल कॉस्ट ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन इंटरनल को प्राइवेट भी बोल सकते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब वो प्राइवेट होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो सोसाइटी बेयर करती है, और अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो उसे सोशल कॉस्ट अज्यूम करेंगे एक्सटर्नल को। yes. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल में क्या क्या चीजें आएंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब प्राइवेट और एक्सटर्नल। मैंने यहाँ पे एक वो रत्नागिरी का एग्जांपल भी दिया था यहाँ पे। सर मैंने बोला था वही ना। व्हाट? Behavior of cost in the short run. Short run cost and the long run cost function. Yes, sir. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन, ऑल राइट। सो फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, विच नेदर बी इंक्रीज और नेदर बी डिक्रीज इन द शॉर्ट रन, जो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है शॉर्ट रन में। और वेरिएबल ऑन द अदर हैंड आर दोज फैक्टर ऑफ the supply of which can be easily changed by any desired quantity in the short run. Short run में आप उसकी you can increase or decrease. Yes, sir. वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या था, रॉ मटेरियल, लेबर बढ़ा सकते हैं ना। अभी आप जाइए, अगर आपको कल चाहिए लेबर्स
ज्यादा जाइए, मिल जाएंगे आपको आराम से लेबर्स। रॉ मटेरियल चाहिए, जहां से आप 100 यूनिट मंगाते हैं वहां से 200 यूनिट मंगा लीजिए। ये Yes. वेरिएबल है लेकिन फिक्स। मशीनरी एक फैक्ट्री। मशीनरी है, करेक्ट, एक मशीनरी है, दूसरी मशीनरी आप अगले दिन नहीं ले सकते बिकॉज इट टेक्स टाइम, शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। फंड्स अरेंज करना, फिर वो मशीन को इंस्टॉल करना, वो चीज। राइट। फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। और फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ Salary. सैलरी, इंटरेस्ट। interest, rent, depreciation, expenses on building, property tax, license fees, ये सब fixed cost. So I wanted to ask that fixed cost is like is it deferred payments, like we pay in future, no rent, interest and all. What? So fixed cost, so it's like deferred payments, like we pay in future, no interest, rent and all. By future, ये कहाँ से एक नई चीज आपने बताई है रीत? Fixed cost मतलब जो चीज, the cost which does not change with in the short run. वो आप जो deferred वाली चीज बोल रहे हैं वो I don't know from where are you reading. So No, deferred. no, sir, सर मतलब जैसे इधर एग्जांपल में दिया है ना सर कि इंटरेस्ट, फिर दूसरा है फिर रेंट बात ऑफ क्यों द कर रहे हैं आप? फैक्ट्री। अभी भी पे कर रहे हैं फिर भी फिक्स कॉस्ट ही रहेगा ना। आप अभी पे कीजिए, बाद में पे कीजिए, उससे मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है सर। उसके नेचर से हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके कृष्णा, वर यू आस्किंग से एनीथिंग? तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। Sir, deferred मतलब क्या होता है sir basically? Deferred means the future payment. Deferred means the future payment. Yes sir. Deferred payment means you are going to pay it in the future. Okay, that is not related. That is not what it means. Fixed cost का मतलब है simple, which does not change in the short run. और सैलरी आपको देनी है एम्प्लॉयज की, वो तो फिक्स ही रहेगी ना, इतनी सैलरी हर महीने देनी है। ठीक है, लेबर बढ़ा सकते हैं लेकिन एम्प्लॉयज इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, तो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है, रेंट आपको देना है फैक्ट्री बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, मशीनरी तो एक ही होगी, उसका डेप्रिसिएशन भी आपको पता होगा कि कितना डेप्रिसिएशन डालना है, तो दैट आर फिक्स्ड। प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी एक प्रॉपर्टी है तो हर साल आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स कितना देते हैं वो आपको पता होगा, अगर 5000 पर ईयर है यू विल बी नोइंग दैट दैट इज फिक्स्ड। लाइसेंस फी वो भी फिक्स होती है। वेरिएबल की बात कर लेते हैं अभी। Variable cost is that cost which is incurred on variable factor. Yes sir. Expenditure incurred on raw material, wages, salary pays to the casual worker. Running expenses like electricity, taxes of type of excise duty which is dependent on the output produced. Excise duty पता है आपको? Excise duty मतलब? Sir मतलब tax. हाँ वो तो है, लेकिन जैसे कस्टम रीत, एक्चुअली आई हैड म्यूटेड यू बिकॉज there was my sound coming back, that was the reason. Whenever you feel like answering you can unmute yourself. Okay, all right. So excise duty matlab when a manufacturer produces something he has to pay excise duty. अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए उसको एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी पता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे दी जाती है कस्टम ड्यूटी, पहले थी अभी तो जीएसटी है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए उसको उस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ेगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, अ प्रोड्यूसर हैज टू पे। तो वो सब वेरिएबल, आप जितनी ज्यादा कम्युनिटी बनाओगे उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा कृष्णा। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे है ना, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे मैन्युफैक्चर करोगे उतना ज्यादा टैक्स भरोगे।
so that is variable. इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे आप, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ेगी रीत आपको. जितने ज्यादा कैजुअल वर्कर रखेंगे, कैजुअल मीन्स विच आर टेम्पररी बेसिस, which are on temporary basis, wages to the laborers, that are the. अब ज्यादा आप आउटपुट करेंगे तो आपको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी ना. आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी. अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी भी ज्यादा भरनी पड़ेगी. दैट इज वेरिएबल. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. अच्छा, तो अभी शॉर्ट रन कॉस्ट को तीन चीजों में बांटेंगे हम. टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं. एवरेज कॉस्ट को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, और एक है मार्जिनल कॉस्ट. ये तीन चीजें हैं, ठीक है. देख लीजिए आप एक बार और. टोटल कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट. Total cost refer to the total obligation incurred by the firm in producing any given quantity of output. Total cost कितना लगा fixed और variable को मिला के, that is total cost. Total fixed cost refers to the total cost incurred by firm on use of all the fixed factor. Fixed factor use करने से आपको कितना cost लगा. By using the total cost that you incurred by using the fixed factor, be attentive. Sir, I'm here only, sir. मैंने mute रखा था, वो आपकी आवाज. No, that is not the problem. You can keep yourself on mute, but be attentive. Yes, I'm here only. Okay. The cost is independent of output. Output कितना भी है, कम है, ज्यादा है, जीरो है, आपका आउटपुट जीरो है, तब भी रेंट तो भरना पड़ेगा. रीत? यस सर. हाँ सर. सो वो तो सबसे पहले है कि गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, पेट्रोल भरना पेट्रोल भरना पड़ेगा. नहीं, पेट्रोल तो वेरिएबल हो गया ना कृष्णा. गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा. EMI भरना पड़ेगा सर अगर उस पे. कंपलसरी होता है सर. इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा ना. क्यों कंपलसरी होता है सर? अरे कभी एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो पूरा गाड़ी उसमें जाएगा ना, वो कवर नहीं होगा. दैट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कृष्ण. कृष्ण का क्वेश्चन है क्या वो मैंडेटरी है. हाँ, सारी व्हीकल पे इंश्योरेंस होना मैंडेटरी होता है. अच्छा. जैसे लाइसेंस होना जरूरी है, वैसे गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर भी होना जरूरी है. ओके, तो हाँ, सर बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है. कैपिटल आपने कितना इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट आप पे करेंगे बैंक को, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आता है. क्योंकि अगर आपने लोन 1 लाख का लिया है तो आप 1 लाख पे इंटरेस्ट भरेंगे ना हर साल. यस सर. फिक्स्ड कॉस्ट है. रेंट जो आप पे करेंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट है. इंश्योरेंस जो पे करेंगे मशीनरी पे या फिर अदर थिंग्स, दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. यू कैन कॉल इट एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑल्सो. आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बेयर करना ही पड़ेगा. चाहे आउटपुट करो या मत करो, या कम करो या ज्यादा करो. प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना, चाहे आप घर में थे या नहीं थे. गवर्नमेंट तो अपना टैक्स लेगी. So total fixed cost is independent of output, no? It is independent of output. Yes. Wages and salary of permanent employee. Permanent employee को अगर आप wages and salary दे रहे हैं तो that is also fixed. Permanent है ना, permanent employee. Okay. Casual worker होता तो variable होता. सभी ध्यान दें यहाँ पे. Casual worker होता तो वो temporary, sorry, casual होता तो variable. लेकिन permanent है तो fixed. So casual मतलब जैसे एक बार के लिए ना, कि जो उसको टेम्पररी बेसिस पे हमने रखे हैं. 1-2 हाँ, घंटे काम किया और चला गया. उसे अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं. तो ये सारे डिफरेंट वर्ड हैं जो आपने अंडरलाइन किए. total fixed cost की. Yes sir. अभी वेरिएबल कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट दैट यू प्रोड्यूस. टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑन यूज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस. मिस्टर कृष्ण ने पेट्रोल बोला था,
गाड़ी चलेगी तभी तो पेट्रोल डालेंगे ना। यस सर। ज्यादा गाड़ी चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल जाएगा, कम गाड़ी जाएगी तो कम पेट्रोल जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कम काम होगा तो ऑल राइट। अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज्यादा टेम्पररी वर्कर ले लेके आने पड़ेंगे और ज्यादा वेजेस और सैलरी पे करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगेगी, कम करेंगे तो कम लगेगी। ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ज्यादा कम्युनिटी पीडीज होंगी तो ज्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा ना, उसका ट्रक ज्यादा लेने पड़ेंगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा भरनी पड़ेगी क्योंकि जितनी ज़्यादा का आउटपुट आप प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ेंगे उस पर। ऑलराइट, तो दे हैव गिवन वेरिएबल कॉस्ट आल्सो वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इट मे बी कॉल्ड एज अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल बोल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं। तो क्योंकि पेट्रोल भरना है नहीं भरना हमारे ऊपर है ना सर। दैट इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट। यस सर। ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल, कम गाड़ी चलाएंगे तो कम पेट्रोल, नई गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल लगेगा ही नहीं। ओके, total cost is the cost incurred on all types of input, fixed or variable। फिक्स्ड और वेरिएबल को जब मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, यस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या लगता है आपको, कांस्टेंट होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा? सर, फ्लक्चुएटिंग होगा बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्यों होगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रीड कॉम्बिनेशन नहीं होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट ओनली, वो टोटल कॉस्ट होता है जिसकी आप बात कर टोटल रहे हैं। कॉस्ट, सॉरी मेरे को लगा सर आप टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हो। मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोला। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होगा ना। यस सर, इट टोटल विल बी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहता है। हाँ सर। तो वो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, ये रहा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर गाड़ी चलाओ ना चलाओ हमको सर गाड़ी का पेमेंट तो करना ही पड़ता है ना। इंश्योरेंस तो भरना ही पड़ेगा, करेक्ट। और ये टीवीसी आप देखिए, टीवीसी को देखिए, और जब आप टीवीसी और टीएफसी को दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा टीसी। टीसी और टीएफसी। और इन दोनों का both of them are going to be parallel because the distance between them is equal. And why the distance is equal between them? सर बिटवीन व्हाट? Between what? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इन दोनों के डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? टीसी टीएफसी। टोटल फिक्स्ड टीएफसी। कॉस्ट, करेक्ट। टीसी इज टीवीसी प्लस टीएफसी ना, तो टीवीसी यहाँ से यहाँ तक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो टीएफसी होगा। यस सर। और जैसे टीएफसी इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये और ये इन दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, और इसलिए टीसी का ग्राफ भी थोड़ा ऐसा बनेगा, थोड़ा कर्व्ड। इन्वर्टेड एस बोल सकते हैं इसको कृष्णा। हाँ सर। याद रखना जब भी पूछेंगे इसके बारे में, so you can say TVC और TC is inverted S। इन्वर्टेड। सर और टीसी सर ऊपर से स्टार्ट होता है क्योंकि सर उसमें सर टीएफसी होता है ना एडेड। करेक्ट, बिल्कुल सही। यस सर। आपको एक ग्राफ याद रहना चाहिए, नहीं तो आप रेफर भी कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। टीएफसी को सेम रखेंगे, आउटपुट को इंक्रीज करेंगे 0 से 0.356। टीवीसी को इंक्रीज करेंगे 0 40। अच्छा एक चीज है, आप यहाँ पे उसको एनालाइज करेंगे ना टीवीसी को, सबसे पहले टीवीसी डिक्रीज होता जा रहा था, नहीं इट वाज इंक्रीजिंग कृष्णा। टीवीसी TVC was decreasing
initially, but afterward it started increasing after minimum. So TVC was not decreasing, sir. Increasing at a decreasing rate, no? बिल्कुल सही, यही मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। कृष्णा, आप हाँ कब सर, बोलने वाले थे? मैं वही बोला। सर मैं बोलने वाला था सर, मुझे जैसे क्लिक हो गया सर, वैसे रीत ने बोल दिया। It was increasing 0, 40, 76, increase तो हो रहा है, लेकिन at a decreasing rate initially, and after that it is increasing at increasing rate. तो मैं वही सोच रहा था कि सर आपने सर ऐसे क्यों बोला कि डिक्रीज हो रहा है करके। मैंने उसके बाद बोला था ना, नहीं डिक्रीज, इट इज इंक्रीजिंग, फिर आई स्टॉप, देन आई वांटेड यू टू आंसर। तो फिर आपने बोला डिक्रीज हो रहा है इससे, तो मुझे याद आया इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट। करेक्ट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, नहीं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट सर। नहीं, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, देन इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यस सर। और टीसी में क्या हो रहा है? उसमें भी सेम ही हो रहा होगा, क्योंकि टीएफसी तो सेम है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं टीसी में वो टीवीसी की वजह से हो रहे हैं। ओके, So the behavior of TVC and it's same. TC. तो इसमें ये टीसी भी पहले इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग। Yes. आपको मैंने क्या बोला था कृष्णा? ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट का ग्राफ कैसे बनता है, बोलो? इंक्रीजिंग रेट का अच्छा, और डिक्रीजिंग रेट का? सर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का बेंड ऐसे झुका हुआ, नीचे को झुका हुआ होता है डिक्रीजिंग रेट, और इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट कैसा रहता है? ऐसा। हाँ हाँ। I'll give you the simple example. You know bear and bull market? यस सर। bear मतलब बेयर नीचे की तरफ बेंड, और तेज। bull मतलब इंक्रीजिंग, लाइक दिस, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज दोनों है, लेकिन एक इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग है और एक इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग। बुल मींस व्हेन द मार्केट इज स्लो, नहीं फास्ट, एंड बेयर मतलब जब मार्केट स्लो होता है। करेक्ट, ऐसा बोला जाता है क्योंकि बेयर जब हंट करता है देन ही लाइक बेंड्स एंड ईट। No, okay, to hunt bear have to like bend, and for if bull want to hunt, he like use his horns and he हाँ throws upward. That is why they use this bear and bull. Yes sir. बुल को जब हंट करना होता है तो ही लाइक विद द हेल्प ऑफ हॉर्न्स ही पुश अपवर्ड, तो और थ्रोज अपवर्ड, दैट इज व्हाई। और बेयर जो होता है वो हंट करने के लिए ही हैज टू बेंड। ओके, सो आई डोंट थिंक यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन। No, no sir. अच्छा, तो whatever you have underlined, I hope you have underlined already. If you have not, you can underline now. I'll help you out. क्योंकि मिस्टर आयुष ने अगर अंडरलाइन किया है तो आई थिंक यू वुड हैव आल्सो अंडरलाइंड इट। So आयुष ने बहुत कुछ लिखा है, मैंने भी लिखा है सर, पर अभी टी- टी- यहाँ पे लिया है लास्ट लाइन में, टीसी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन एन इंक्रीजिंग रेट। So like TVC, no TC. अच्छा, both the behavior of both. टीसी और टीवीसी दोनों का नेचर सेम है। So they both increase at decreasing rate first and then at a... Initially they are concave downward and after subsequently they are concave upward.
Answer the, what do we say, the behavior of, अच्छा, TFC तो it's same only at every level of output. कृष्णा, डू यू नो कि ऐसा क्यों होता है? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग, ऐसा हो क्यों रहा है? सर सर कौन से ग्राफ में सर? ये सर वाला? मैं बोलूं सर क्यों होता है? सर बोलूं मैं, एक मेरे को याद आ रहा है। अच्छा कृष्णा तू बोल ले, ट्राई टू बोलिए समझ। बोलिए बोलिए, रीत बोलिए, अगर आप कुछ कहना, आंसर देना चाहते हैं। सर ऐसा इसलिए होता है सर, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से। सर हमने जो याद पढ़ा, आया? याद आया ये जो कृष्णा या नहीं? हम्म, सर मेरे को पूरा स्ट्राइक हुआ सर, पूरी चीज मेरे दिमाग में आ गई सर अभी। नाइस नाइस। कृष्णा, पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब रिवाइज करोगे? चैप्टर बचे हुए हैं, कितने चैप्टर बचे हुए हैं अभी? रिवाइज करो जल्दी से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इनिशियली दे गिव हायर रिटर्न एज दे मूव टुवर्ड द ऑप्टिमम, और ऑप्टिमम के बाद क्या होता है? ओवर क्राउडिंग, मैनेजर सुपरवाइज नहीं कर पाते हैं। याद आया? पहले एक लेबर ही सारा काम करता था, रॉ मटेरियल लाना, मशीन में डालना, मशीन से आउटपुट निकाल के पैकिंग करना। दो दो लेबर लेके आए, 3 लेबर लेके आए, एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यस सर, समझ में आ गया। उसके बाद ऑप्टिमम टाइम आया, फिर ऑप्टिमम के बाद ओवर फुल क्राउडिंग हो गई, लैक ऑफ ओवर। सुपरविजन हो गया, ये सब होने की वजह से इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। यस सर, समझ में आ गया मुझे। हम्म। तो लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग एट, अच्छा वहां पे क्या था? सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? इंक्रीजिंग एट, इंक्रीजिंग रेट। हाँ, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है पहले। हाँ क्यों? एक मिनट क्यों ऐसा क्यों? सर, क्योंकि वहां पे मार्जिनल लेते थे। एक मार्जिन मिनट। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए, आंसर दें। जैसे जैसे आप इनिशियली लेबर ऐड करते रहते थे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, क्योंकि पहले एक ही आदमी सारे काम करता था। हाँ हाँ हाँ। पहले एक ही आदमी सारे काम करता था, फिर 2 लेबर आए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, डबल से भी ज्यादा हुई। डबल से नहीं, मतलब इंक्रीज हुई, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से होती जा रही थी। एक ऑप्टिमम आया, फिर आफ्टर दैट इट वाज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग रेट पहले। ऐसा क्यों? बोलिए, आंसर दें आप, कुछ बोलिए, क्या हो गया? टेस्ट है ना आपका परसों? डिक्रीजिंग रेट सर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट सर पहले हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर सर क्योंकि सर ऑलरेडी सर ये है शायद से ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन तो यहाँ पे आएगा ना आगे। अंडर 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 यूटिलाइजेशन है, अंडर यूटिलाइजेशन। तो कम आएगा, क्या कम आएगा? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है रीत, क्योंकि पहले, अच्छा वो जो रूल लॉ थे ना, वो रिटर्न के ऊपर थे, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? कॉस्ट। कॉस्ट। अगर आपकी इफिशियंसी ज्यादा है तो कॉस्ट तो कम ही लगेगा ना? यस सर। नहीं, कम लगेगा? नहीं कम नहीं, नहीं ज्यादा। कृष्णा, इंक्रीज होगा कॉस्ट। अरे आप एक लेबर था, अभी 2 लेबर ला रहे हैं, तो कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ना, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। हाँ अच्छा। कृष्णा एक बात बताइए मुझे, आपका कॉस्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट फेवरेबल है या इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट फेवरेबल है? डिक्रीजिंग रेट सर, ऑब्वियसली। क्या लगता है कृष्णा, आपके लिए इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट कॉस्ट फेवरेबल है या इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट कॉस्ट फेवरेबल है? कॉस्ट तो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट ही होगा ना सर। इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट का कॉस्ट होगा तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट। और वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट क्यों हो रहा होगा कॉस्ट?
ओवर यूटिलाइज, ज्यादा ये हो गया लेबर। ओवर यूटिलाइजेशन, करेक्ट। ओवरक्राउडिंग। और इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यस रिसोर्स। सर। समझ में आ गया ना अभी अच्छे से? हाँ ठीक है। सर और तो आप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट से लेके तो ऑप्टिमम तक, ऑप्टिमम के बाद ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है। यस सर। नहीं नहीं, आप ग्राफ में ये वाला ग्राफ की बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये ग्राफ की नहीं सर, वैसे वो जो तीन होता है ना, एक तो अंडर होता है, ऑप्टिमम होता है, ओवर होता है। करेक्ट करेक्ट, यस। अच्छा तो पहले अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, उसके वजह से वी वर मूविंग टुवर्ड, विल नॉट से बिकॉज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन योर कॉस्ट वर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नहीं। रीत समझ में आ रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन इज नॉट द रीजन कृष्णा, अंडर यूटिलाइजेशन इज नॉट द रीजन ऑफ increasing at decreasing rate. यस सर। What is the reason of the सर increasing at decreasing rate? रीजन लेबर ज्यादा बढ़ रहे हैं सर। नहीं नहीं, because we are that moving we are towards the moving, optimum. we are moving towards optimum. Underutilization is not the reason. Underutilization तो एक one of the demerit है. अच्छा ओके ओके ओके, मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिमम। हाँ yes, आप एक और लेबर लेके आ रहे हो, एक और लेबर लेके आ रहे हो, एक और लेबर लेके आ रहे हो, ऐड कर रहे हो, तब ऑप्टिमम की तरफ जा रहे हो ना। वो एक रीजन है कि आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। यस सर। ऑप्टिमम पे यहाँ पे है, और ऑप्टिमम के बाद ओवरक्राउडिंग की वजह से, किसकी वजह से रीत? So ये ओवरक्राउडिंग। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यस। सर मतलब वही होता है ना कि अंडर से फुलर तक का जो बीच का ट्रांजिशन होता है या जो फेज होता है, वो बोलेंगे हम लोग, उसकी वजह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट हो रही है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ सर। ठीक है। सो जस्ट टेल मी वन थिंग, just go through average also. You can take your time, just go through the average. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सर। Yes, average, not just fixed cost, everything till marginal cost. We have very less time left, so I think we should continue with the same strategy of discussion. ओके सर। Alright, एवरेज कॉस्ट जब भी आए वर्ड, आपको पर यूनिट वर्ड लिखना जरूरी है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट डेफिनेशन में होना चाहिए जहां पे भी एवरेज आ रहा है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट लिखना ना भूलें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, TFC डिवाइड बाय Q, क्वांटिटी। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। हाँ, याद आ रहा है? कैसे याद आया? वो एरोप्लेन वाला, सर हाँ एरोप्लेन, हाँ सर, याद आया। एरोप्लेन का फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? मतलब यहाँ से न्यूयॉर्क जाने का 1,00,000 रुपीज। आप कितने भी नंबर से डिवाइड करें, कितने भी नंबर से 1,00,000 डिवाइड बाय 1 करें, तब भी 1,00,000 आएगा। अगर 1,00,000 डिवाइड बाय 10,00,000 करें, 10,00,000 पैसेंजर, तब भी वो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं आएगा। 0.0001 आ सकता है, एक 0.0011 आ आदमी तो सकता चाहिए ही होता है सर। है। व्हाट? प्लेन उड़ाने के लिए एक आदमी चाहिए ही होता है। हाँ हाँ और सर प्लेन हाँ, भी वो तो भी उतना, फिक्स कॉस्ट हो सकता है, करेक्ट, यस। बोलिए रीत। सर प्लेन भी तो उतना डिस्टेंस कवर करने ही वाला है, चाहे एक जाए या जितने भी जाए, उतना तो लगने ही वाला है उतना तो कॉस्ट। लगने वाला है, करेक्ट। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जब प्लेन डिपार्चर का टाइम आ जाता है उसका, उस टाइम पे टिकट कभी कभी ना सस्ते कर देते हैं, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है। क्योंकि उन्हें खाली सीट जाए उससे तो बेटर है ना कि एक और पैसेंजर बैठ के चला जाए, चाहे पैसे कम दे।
और सब बहुत लोग एंड मोमेंट में करते हैं ना टिकट्स कभी कभी ऐसा, तो वो लोग कर देते हैं। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कंटिन्यूअस फॉल होता है, समझ में आया? रीत देखो यहाँ पे देखो, यस सर। 1 लाख डिवाइडेड बाय पहले क्या करोगे 1 लाख आया आंसर। एएफसी हाँ कितना आया? सर 1 लाख। अच्छा, आउटपुट इंक्रीज करें अभी, हाँ 1 लाख डिवाइड बाय 2 कर दो, 50,000 आएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 3 कर दो, 33,000 आएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 4 कर दो, 20,000 आएगा। देखा, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं एएफसी क्या हो रहा है? सर डिक्रीज। कृष्णा आप सेल्फ स्टडी बाद में कर लीजिएगा क्लास के बाद, अभी ध्यान दें यहाँ। 1 लाख था पहले और आउटपुट पहले 1 था, तो 1 लाख आपका एएफसी आया था। फिर आपने आउटपुट इंक्रीज किया 2, फिर 50,000 आया, फिर 3 33,000 डिवाइड बाय 4 पैसेंजर डिवाइड बाय 4 आउटपुट 20,000। AFC is continuously decreasing. Okay, पहले 1 लाख था, फिर 50,000 हो गया, फिर 33,000, फिर 20,000। रीत समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है, मतलब जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे एएफसी डिक्रीज होता रहेगा। AFC डिक्रीज होता, कंटिन्यूअस फॉल होता जाएगा। सर इसलिए आप और सर डायग्राम भी देखेंगे, इसलिए आप डायग्राम भी देखेंगे ना यहाँ पे, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग। सर इसने और सर उसका शेप लेफ्ट टू और राइट इसको है। कृष्णा 0 पे टच करेंगे। नहीं कृष्णा, टच नहीं करेंगे। नहीं सर 0 पे होगा ही नहीं 0 एएफसी। 0 टच नहीं होगा, 0.1 आ सकता है आपका आंसर, लेकिन 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय आप समझ लीजिए 1 करोड़ कर दीजिए, कुछ ना कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 0 नहीं आएगा कभी आंसर। यू कैन कॉल इट एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको आपने लिखा है, देखिए आयुष ने सब कुछ लिखा है, हाइपरबोला लिखा है, नेगेटिवली स्लोप डिक्रीजिंग बट नेवर टचेस 0। वाओ, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। हाँ ना सर उसने तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कर्व के शेप को। EVC देख लीजिए, फॉर्मूला वही है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बस खत्म। और क्या है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, खत्म डेफिनेशन। TVC डिवाइड बाय Q। वही है सर, एवरेज में बस पर यूनिट। हाँ, अभी देख लेते हैं AVCS का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए कृष्णा, यहाँ देखिए स्क्रीन पे, देखिए जैसे जैसे हम ऑप्टिमम की तरफ जा रहे हैं हमारा एवरेज कम आ रहा है, और एवरेज कॉस्ट कम आ रहा है, तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, करेक्ट करेक्ट। आपका एवरेज कॉस्ट कम होता जा रहा है। अरे मिस्टर कृष्णा, एवरेज मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मैं मानता हूं आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा एज यू आर इंक्रीजिंग द आउटपुट। योर TVC will increase at a decreasing rate, right? यस सर। But you will dividing it by quantity, तब तो आपके ABC तो कम होता जाएगा ना, एवरेज तो कम होगा ना। हाँ ठीक सर। है, TVC इंक्रीज होगा बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, लेकिन जब क्वांटिटी से डिवाइड करोगे ना तो पर यूनिट कॉस्ट आपका डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप ऑप्टिमम की तरफ जाओगे। यस सर। रीत समझ में आया? फिर से बताऊं? सर एक बार रिपीट करो ना, यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे बाहर सर, पूरा डिस्टर्ब हो रहा क्लास के बाद जाके बदला लेके आना। आज क्या है TVC सर? आज पटाखे क्यों फोड़ रहे लोग? है। अरे पता नहीं सोसाइटी में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पे फोड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए TVC, हाँ रीड TVC तो इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, डू यू एग्री? फर्स्ट स्टेज 1 में हाँ सर आई एग्री। इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट भी तो बढ़ा रहे हैं ना नीचे, पहले 2 3 4, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा।
आउटपुट बढ़ाएंगे तो। आउटपुट, हाँ टीवीसी देखिए पहले 10 था और क्वांटिटी थी 1, तो आपका 10 आ रहा था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कितना है? 10 है ना, 10 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 10 होता है। हाँ सर। हाँ, अभी 2 कम्युनिटीज का लीजिए, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग रेट है ना, तो 18 से 20 सॉरी 10 से 20 नहीं होगा वो, 10 से 50 समझ लीजिए 15 हो गया। 15 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? हाँ 7.5। हाँ सर। एएफसी कम हो रहा है ना इनिशियली कृष्णा, पहले 10 था एएफसी सॉरी एबीसी, फिर 7.5 हो गया, एवरेज कम होता जा रहा है। यस सर। इसलिए सर हमारा आपने इसलिए बोला था कि ये पहले एक बार कि जब मास प्रोडक्शन करते तो सर ये प्रॉफिटेबल होता है उनके लिए, मतलब एक ही गुड बल्क में प्रोड्यूस किया तो। मास की तो बात ठीक है, मास तो आगे भी होगा ना, मास तो आगे भी है, वो रीजन नहीं है रीत। अच्छा। बट यहाँ पर लेबर का ये है ना, लेबर जब कम होता है तब अच्छा होता है, मतलब ऑप्टिमम लेबर होना चाहिए ना। We are अगर moving toward the optimum level, that is why, yes. अगर ज्यादा लेबर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मैनेजर खुद को बैठने के लिए जगह नहीं होगी। तो रीत वो इनकरेक्ट रीजन हो गया, क्योंकि आगे भी तो जाके आउटपुट इंक्रीज ही होता जा रहा है ना, तो वहां पे भी तो मास प्रोडक्शन ही होगा, लेकिन वहां पे नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं, और नेगेटिव रिटर्न की वजह से क्या होगा कृष्णा बोलो? नेगेटिव रिटर्न की वजह से लॉस हो जाएगा ना सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन एवीसी आपका इंक्रीज होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। यस सर। रीत क्यों सर? क्यों? देखिए जब फेवरेबल चीजें थी तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा था, एक पॉइंट आया जहाँ पे ऑप्टिमम हो गया। अच्छा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, हाँ हाँ, कॉस्ट की बात हो रही है, ओवर हाँ यूटिलाइजेशन की वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा बाद में। इंक्रीज होगा सर। हाँ हम्म। सर, मतलब अगर हम एएफसी की बात करें तो सर ये बोल सकते हैं ना वो डिक्रीज होता है, वो क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि इसकी वजह से आउटपुट, Because of the law of variable factor, हाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। law of variable proportion, right? And because we are moving toward the specialization, here given, I'm highlighting it. Krishna, देखो जल्दी, डिवीजन ऑफ लेबर। efficiency of variable input increases also because of specialization. उसके वजह से आपका एबीसी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? सर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था पहले ये। तो ये रीड कर लेना, रीड एबीसी रीड कर लेना कि यू शेप क्यों है, यस सर। बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो आप बिकॉज पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ओके, यस सर। ओके सर। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से, एसी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज द टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपका एसी ऐसा बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है? हाँ सर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, डायग्राम बना के शेड्यूल बना के अच्छे से प्रैक्टिस करें आप, लिख लिख के। तो मेरा डायग्राम लर्न भी हो गया सर। नहीं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कृष्णा, बना बना के आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जाम टाइम पे क्विकली बना पाएंगे, नहीं तो इट विल बी लाइक रबिंग एंड डूइंग इट अगेन। यस। So a number of important observation must be noted about the ATC। आप ये रीड कर लीजिएगा, तीनों प्रॉपर्टी दी हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल इंक्रीज, एडिशनल कॉस्ट एज वन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, एक आउटपुट प्रोड्यूस करने की वजह से आपका कॉस्ट कितना इंक्रीज होता है, और उसका ग्राफ सिंपल ही है, मैंने आपको अभी भी बताया था ना, पहले कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा। रीत समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है, पहले स्टार्टिंग में डिक्रीज कॉस्ट डिक्रीज होता जा रहा है, देखो एज यू आर इंक्रीजिंग वन मोर कमोडिटी। मार्जिनल कॉस्ट पहले का 100, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके डिक्रीज होता जा रहा है ऑप्टिमम तक,
ऑप्टिमम के बाद इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन, आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा। दे हैव गिवन द two properties after that, just go through it afterwards. सर आयुष ने क्या लिखा है सर ये डायग्राम के ऊपर, ये एमसी के डायग्राम के ऊपर? उसके बाद रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, वो भी आप रीड कर लेना। क्या रीड यू शेप है ना, ये यू शेप। हाँ सर, and cost is the और ये मार्जिनल कॉस्ट किसके बेसिस पे बनाया जाता है कृष्णा? सर मार्जिनल सर टोटल कॉस्ट, टीसी माइनस टीसीएन माइनस डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट। टी, हाँ डिफरेंस कैन आई कॉल इट एज अ डिफरेंस इन द टीवीसी आल्सो? क्योंकि टीएफसी तो सेम रहता है ना टीसी में। टीसी में जो भी Yes, चेंज आ रहा है क्यों आ रहा है? टीवीसी की वजह से। कॉज ऑफ टीएफसी, टीवीसी, अरे टीवीसी सर। यस, टीवीसी की वजह से जो भी डिफरेंस आ रहा है टीसी में, वो टीवीसी की वजह से आ रहा है ना, इसलिए या रीड डिफरेंस इज ड्यू टू टीवीसी और यू कैन से टीसी। Yes sir. Okay, so they have given the properties after that, and afterward they have given the relationship between the average cost and the marginal cost. You can just go through it, and if you have questions, we will clear it tomorrow. All right? यस सर। Yeah, and we'll continue with the revenue tomorrow. Okay sir, so tomorrow same timings 6:30. Yes, Preet. Krishna, I cannot see you. I don't think you have started revising. करो, variable proportion बचा हुआ है करने के लिए, काफी चीजें बची हैं, revise करो जल्दी से। Okay sir. यस सर। Okay. Bye sir, thank you sir. Goodbye, Preet. You're welcome. Bye Krishna. बाय बाय। Yes, Krishna, बोलिए। हाँ सर। सर You were saying something? नहीं सर। All right. I was saying start revising. What are you waiting for? सर नहीं, आज सर पेपर वगैरह दे के आना सर स्कूल में, इसलिए सर आज नहीं हो पाया रिवीजन सर, बट अभी बैठ के करूँगा सर। Okay, Krishna, we have put in so much effort. मैक्रो को हमने किया कितना सारा, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। यस तो सर। don't leave anything. Start revising. हो गया सर। क्या हो गया? इकोनॉमिक्स सर ऑलरेडी अच्छे से हो गया सर, जितना सर अकाउंट्स के लिए करना पड़ा उतना नहीं करना पड़ेगा सर इको में सर। Okay, we have put in so much effort. नेशनल इनकम, मनी, बैंक, फिर ये अपना थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैंने कराया था। मतलब मैक्रो तो मैंने ही करवा दिया आपके क्लास में, आपको बस एक बार और गो थ्रू करना है। यस सर। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर माइक्रो बचा, माइक्रो का कॉस्ट आज हो गया, रेवेन्यू कल हो जाएगा। तो रेवेन्यू आप पहले से ही करके रखिए, क्लास का वेट ना करें, क्लास से पहले ही कर सकते हैं चाहें तो। खाना खाने के बाद सर। फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन है, फिर बहुत सारे चैप्टर है ना, डिमांड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो सब करें। आयुष से पेपर, यू कैन टेक पेपर फ्रॉम रीत और आयुष। The paper is going to be little bit similar to that. Try to answer the questions. Okay? All right. Goodbye, Krishna. I'll see you tomorrow at the same time. Bye, Karamas.